next number 17. I think very simple. Yeah, very ordinary. From the following particulars, calculate break-even point. Variable cost is 12 per unit, fixed expenses 60,000, selling price per unit is 18. So what is the answer? It's a 10,000. It's a very ordinary. It is fixed expenses upon contribution per unit. What is your contribution per unit? It is 6. So 18 minus 12 is 6 and 60,000 by 6 is 10,000. So just write down contribution per unit is equal to 18 minus 12 equal to 6. Therefore, break-even point equal to fixed cost upon contribution per unit. So here your fixed cost is 60,000 divided by contribution per unit is rupees 6. Therefore it is 10,000 units. Very ordinary, orally हो जाएगा आपका. Then number 18. From the following particulars, find out the selling price per unit if BP is to be brought down to 9,000 units. From the following particulars, find out selling price. Find out selling price if break-even point is to be brought down to 9,000 units. Variable cost per unit is 75 and fixed expenses 2,70,000 and selling price is rupees 100. अब देखिए, अब तक के जितने प्रॉब्लम्स हमने देखे ना, उसमें हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करते थे. अब आपको क्या करना है ना कि ब्रेक इवन पॉइंट ये आपको 9,000 पर लाना है. I want my break-even point as 9,000. So determine what should be my selling price. ठीक है, existing selling price भले ही 100 है, तो आप इतना देख सकते हैं कि इस वक्त आपका break-even point क्या है बोला? It is 10,800. Very smart. आपने क्या किया? Selling price is 100 minus 75. It is 25 contribution per unit. And your current fixed expenses are rupees 2,70,000. तो सिंपल सी बात है 2,70,000 डिवाइडेड बाय 25 इट इज 10,800. ये मेरा एग्जिस्टिंग ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन मुझे ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए 9,000. सो व्हाट शुड बी माय सेलिंग प्राइस? यस, आप करेंगे इसे. आई वांट माय ब्रेक इवन पॉइंट एज 9,000. कितना? 117. बताएंगे कैसे है 117? अब एक काम करो ना, 117 रुपए अगर आपका आंसर आता है तो आप चेक करके देखो 117 से अगर मैं 9,000 यूनिट सेल करूं तो व्हाट विल बी माय सेल्स माइनस व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट, और फिर जो बचता है कंट्रीब्यूशन, वेदर दैट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2,70,000. If the answer is yes, your answer is welcome. Your answer is correct. अगर नहीं है तो कोशिश करो, फाइंड आउट करो. हाँ मनीष, कितना? 105. 105. 105. How it is 105? कैसे किया गांधी? $2,70,000 divided by 9,000. वो क्या आया? 30. 2,70,000 divided by 9,000. I get rupees 30. हाँ, उसका क्या करेंगे आगे? लेकिन 75 plus 30 ऐसा क्यों किया? No, your answer is correct. Very first I did. 105 answer is correct. But then why you are adding? 30 क्या है तेरे लिए? हाँ, इसका मतलब है 2,70,000 ये हमारी फिक्स कॉस्ट है
तो अगर 2,70,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है तो इसका मतलब माई रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन 2,70,000, तो इसका मतलब है 2,70,000 मेरी फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए मैं 9,000 यूनिट बेच रहा हूं, तो इसका मतलब है माई कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी रुपीज 30 पर यूनिट, 30 पर यूनिट. एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ही तो होता है. आर रीडिंग हियर? सो हियर it can be say that selling price for break even point 9,000 units. In that, therefore required contribution per unit is equal to fixed cost divided by BP quantity. क्योंकि जितनी फिक्स कॉस्ट है उतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन चाहिए, so that there will be break even point. So this is 2,70,000 is my required contribution, that is my fixed cost, divided by 9,000 units. Therefore it is rupees 30. Now see that, see sales minus, एक मिनट लिखो मत, sales minus variable cost is equal to contribution ना, ये तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है. इसी का मतलब what is sales? It is contribution plus variable cost. ठीक है? So here I can say, so what is my contribution? 30. What is my variable cost per unit? 75. So it is my selling price 105. Is it? So write down. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखे हम डायरेक्टली. सेल्स इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट. ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. सेल्स इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट. Got it? So 30 is my contribution plus variable cost is 75. So my selling price should be 105. देखिए, अब इसको सॉल्व करने का और एक तरीका भी हो सकता है. देखिए, 9,000 is my break even point. So at break even point, sales equal to total cost. ब्रेक इवन पॉइंट पर जितना सेल्स होता है दैट टोटल सेल्स इज इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट, क्योंकि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है ना. तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है कि जितनी मेरी टोटल कॉस्ट है उतना ही मेरा सेल्स है. सो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. इसी का मतलब अगर एट 9,000 लेवल जो मेरा टोटल सेल्स आएगा उतनी ही मेरी टोटल कॉस्ट आएगी. ठीक है? अब टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज फिक्स्ड, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. नाउ टेल मी, अब मैंने क्वांटिटी कितनी बेचनी है? बड़ा बिल्कुल क्लियर है. कितने यूनिट बेचने मैंने? 9,000. सो 9,000 इस लेवल पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? इन दैट 9,000 इंटू 75 ना वेरिएबल कॉस्ट. सो 9,000 इंटू 75. So variable cost will be 6,75,000. That is 9,000 into 75, and fixed cost is 2,70,000. इसका मतलब my total sales should be 675. My total cost will be 9 लाख. इतनी मेरी टोटल कॉस्ट है, बस इतना मेरा टोटल सेल्स होना चाहिए. Is it? Therefore, sales quantity equal to this 9,45,000 divided by 9,000 units is equal to 105. Is this clear? तो ऐसे भी कर सकते, लिख के रखिए. पता नहीं कब कौन से कहां पर किस तरह से सॉल्व करना पड़े आपको. अल्टरनेट सॉल्यूशंस कैन बी देयर बट सॉल्यूशन मस्ट बी सेम.